Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have completed civics portion, so today we are going to start geography, and in geography we will study about natural vegetation and wildlife. First of all, let us know about natural vegetation. Natural vegetation it refers to plant communities. ये किसके लिए रिफर करता है? ये प्लांट कम्युनिटीज के लिए रिफर करता है, जिससे कि जिसमें किसी की हेल्प नहीं होती है, ना ही ह्यूमन बीइंग की हेल्प होती है, ना ही अदर की हेल्प होती है। वो अपने आप उगते हैं और बड़े होते हैं। ठीक, उगते हैं और बड़े होते हैं। ये बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के बड़े होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। ठीक, ओके। एंड देन आफ्टर वाइल्ड लाइफ, and then first topic today we will start in this chapter, that is life on the earth. We will study about life on the earth, and second biosphere and its importance. These two topics today we are going to start discuss. So let's see here. नेचुरल वेजिटेशन मीन्स आप हिंदी में कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ओके, और वाइल्ड लाइफ आपको पता है जो जानवर वन में रहते हैं। ठीक, सो फर्स्ट लेट अस सी हियर लाइफ ऑन द अर्थ। Exactly when our earth came into being, and not only this, in this chapter we will study about biosphere and its importance, and after this we will discuss about impact of humans on biodiversity and also human means environment, and after this we will study about different varieties of natural vegetation and wildlife in the world, and then after we will start or discuss about natural vegetation of India separately, and in this we will discuss first of all natural vegetation, and then after its division. In division, first one is tropical evergreen rainforest, second one the tropical deciduous forest, and third one the semi-desert and desert vegetation, and fifth one the the tidal forest, and the sixth one vegetation of the Himalayan region. And after this we will discuss about wildlife in India. Okay, these are the topics we have to study in this chapter. So let's start our first topic, that is life on the earth. Exactly when our earth came into being is still a conjecture, and nothing can be said with certainty. It is also said that exactly we don't know about earth when it come into being, and also we are in only means we are imagining only, means हम केवल इसको अनुमान लगा सकते हैं, and nothing can be said with certainty. हम किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को हम इससे रिलेटेड उसको एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं. The geologist would have us believe that it came into being about 3,000 million years ago. And what geologists said, geologists give us information only about this, that that human being came into came up to about 3,000 million years ago. For many million years, no living thing could dwell on it. मीन्स उनका ये भी कहना है कि बहुत सालों मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर कोई नहीं रहता था, जीव जंतु कोई नहीं रहता था.
इट इज सेड दैट द फर्स्ट लाइफ इमर्स्ड इन द ओशंस, और ये भी कहा जाता है कि जो पहली लाइफ उभर करके आई सामने वो ओशन में पाई गई। विद द पासेस ऑफ टाइम इट वेंट ऑन इवॉल्विंग, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ये धीरे धीरे उभर करके सामने आते रहे, और ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इनटू डिफरेंट स्पीसीज, और कई स्पीसीज में ये उभर करके सामने आए। दिस इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी जो डिफरेंट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हम इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत कौन आता है? प्लांट्स भी आते हैं, या एनिमल्स भी आते हैं, प्लस वी ह्यूमन बीइंग आल्सो कम अंडर दिस। ओके, नाउ सी द सेकंड biosphere and its importance. Okay, as we have already read, life is possible only with a narrow zone of the earth as the biosphere. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइफ पॉसिबल है किस कहाँ पर? a narrow zone that is known as a biosphere. Biosphere, as we already know, is that part of the earth. बायोस्फीयर वो हमारे अर्थ का वो पार्ट है, वो हिस्सा है, क्या है? ऑफ द अर्थ विच इज ऑक्युपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस हिस्से पर, जिस एरिया में लिविंग बींग्स रहते हैं और उस एरिया को ऑक्युपाइड किए हुए हैं, कैप्चर किए हुए हैं, वही क्या हो गया? बायोस्फीयर। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, और इसके अंतर्गत और भी क्या आता है? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एज वेल एज अ लिथोस्फीयर। दिस इज द होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो दैट ऑफ मैन। यह बायोस्फीयर किसका होम है? बोथ प्लांट्स एंड ऑल्सो ऑफ एनिमल्स। बायोस्फीयर हैज अ स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन। बायोस्फीयर का एक खुद का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। वाई? इट हैज़ गिवन अ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू आवर प्लैनेट अर्थ। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह हमारे अर्थ को एक इम्पोर्टेंट स्पेशल प्लेस दिया है, ये हमारे अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आवर अर्थ इज़ यूनिक इन द होल सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ द बायोस्फीयर। Our earth is also very unique and also known as a unique planet of solar system. Why? Only because of the presence of biosphere. क्यों हमारा planet अर्थ यूनिक है? केवल किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर biosphere present है। Okay? No other planet as yet known has got biosphere or life on it. और इस अर्थ के अलावा और भी कहीं बायोस्फीयर नहीं पाया गया। दो समटाइम्स इट इज़ सपोज दैट कंडीशंस ऑन द मार्स, कभी अभी थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस तरह की कंडीशंस मार्स पर हो सके। अनदर प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ये अर्थ के बाद हो सकता है मार्स दूसरे नंबर पर हो। Yet there is a solar system are also favorable to support some form of a life. Yet there is no evidence to sustain it. लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि हाँ अर्थ के बाद मार्स का ही दूसरा नंबर है जहाँ पर ये सब सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, बायोस्फीयर होगा। These living organisms in the biosphere have given a unique feature to the planet Earth. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन्होंने हमारे अर्थ को एक क्या दिया है? बहुत ही यूनिक फीचर दिया है। The earth has thus become unique because of its biosphere. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा अर्थ बहुत ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पर बायोस्फीयर प्रेजेंट है।
only because of the our earth is called unique only because of the presence of biosphere. Okay beta, so today only this much, and here's your homework learn word meaning of chapter 8. Okay beta.